Good morning, students. Today we are ready to study math for class 7 with the previous exercise 7.3. In the previous video, we had to start the exercise 7.3 and I have explained till the question number 5. So today's video start with the question number 6. We have to discuss about some word problems. I have explained some questions and given to your homework. So let's see the question number 6. The perimeter of a rectangle is 52 meter. The length is 2 meter more than twice its breadth. Find the dimensions of the rectangle. So first we understand what the question says. Question में ये दिया है कि perimeter of rectangle, एक rectangle है जिसका perimeter 52 मीटर है, length is 2 मीटर more than twice its breadth, और उसकी length कितनी है, उसकी breadth जो भी breadth होगी उसका twice plus 2 मीटर more means 2 मीटर ज़्यादा करने से जो वैल्यू मिलेगी that is length. So we should find the dimensions, mean we should find their length and breadth. So first, how can we solve the question? First we note down the information that are given. Perimeter of a rectangle is 52 meter. Let's the breadth. First we let the breadth. Breadth is x meter. Breadth कितनी मानेंगे? x meter. So length कितनी हो जाएगी? According to question length क्या हो जाएगी? Twice of breadth. Twice of breadth means x का 2 times प्लस 2 मीटर मोर देन था इसलिए 2 मीटर ऐड कर देंगे तो लेंथ कितनी हो जाएगी 2x प्लस 2. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज व्हाट? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2l प्लस b, 2 लेंथ प्लस ब्रीथ. सो वी शुड पुट द वैल्यू ऑफ लेंथ एंड ब्रीथ इन देयर प्लेस. लेंथ इज इक्वल टू 2x प्लस 2, सो वी शुड पुट 2x प्लस 2 प्लस ब्रीथ. ब्रीथ मीन्स x मीटर, ब्रीथ इज x. फर्स्ट वी add the variables 2x plus x, 3x, then 2, 3x plus 2 in a bracket. We open the bracket, 2 3s are 6 and 2 2s are 4. So 6x plus 4 meter is 6x plus 4 meter is the perimeter of rectangle. And in the question the perimeter of rectangle also given. So this perimeter of rectangle is equal to this perimeter of rectangle. Means we can say that 6x plus 4 meter is equal to 52 meter. After that 6x is equal to 52 minus 4 plus 4 is left side. When we move to the right side then it will be converted into negative integer. So 52 minus 4 is 48. 6x is equal to 48. The value of x is equal to 48 divided by 6. 6 from the left side are in multiplicative form. When it shift to the right side it will convert into division form. 6 1 is 6 and 6 8 is 48. The value of x is 8 meter. So the value of x is 8. Then we put the value of breadth and length. So what should be length of breadth? Breadth को हमने क्या माना था? x. So breadth is x means 8 meter. Clear? Length is what? Length is 2x plus 2. We should put the value of x in the place of x. 2 into 8 plus 2, 2 8 is 16, 16 to 18, 18 meter. Length is 18 meter, 8 and 18 meter. So what's our answer? Our answer is the perimeter of the rectangle is 52 meter and their dimensions means its length is 18 meter and breadth is 8 meter. Okay. Next we come for the question number 7. Question number 7 is your homework. I will explain you how can you solve this. If 1 upon 2 is subtracted from a number and difference is multiplied by 4, the result is 5. What is the number? I have explained you this type of question in fraction and also in rational number. क्वेश्चन ये है कि अगर 1 upon 2 सब्ट्रैक्ट किया जाता है किसी नंबर से और जो डिफरेंस आता है उस डिफरेंस को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा? 5 आना चाहिए. तो जो इक्वेशन बनाएंगे आप इक्वेशन को सॉल्व करके आप ये नंबर इजीली फाइंड कर सकते हैं. कम फॉर द क्वेश्चन नंबर 8. अ फ्रैक्शन इज सच दैट हुज न्यूमरेटर इज 4 लेस देन द डिनोमिनेटर. If 1 is subtracted from the numerator and 3 is added to the denominator, then fraction becomes 1 upon 5. Find the original fraction. एक फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर 4 लेस देन द डिनोमिनेटर, उसके डिनोमिनेटर से 4 कम है, मीन्स न्यूमरेटर 4 कम है और डिनोमिनेटर 4 ज़्यादा है. अगर 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर, उस न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें एंड 3 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर दें, देन द फ्रैक्शन इज 1 अपॉन 5. फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 5 हो जाएगा. तो फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन. वी हैव टू फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन. लेट्स सी द क्वेश्चन.
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है, क्वेश्चन को देखेंगे साथ में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस 4/x ये हमारा फ्रैक्शन बनेगा। ठीक, क्या कहा जाता है कि इसमें न्यूमरेटर 4 लेस देन होगा, जो भी फ्रैक्शन है उसमें न्यूमरेटर क्या है 4 लेस देन है, तो न्यूमरेटर से हमने 4 लेस कर दिया तो हमारा फ्रैक्शन बन क्या है x माइनस 4/x। उसके बाद क्या कहा गया 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर, तो 1 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया गया, इसी फ्रैक्शन में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया गया और 3 ऐड कर दिया गया। देन द रिजल्ट क्या मिला 1/5। ठीक, ये इक्वेशन बनाई यहाँ से, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। then -4 and -1 minus minus will be plus -5, x minus 5/x plus 3 is equal to 1/5. Then in next step we have to cross multiply. I have explained the method of cross multiply in the previous video. 5 is multiplied with the expression x minus 5 and 1 is multiplied with the expression x plus 3. 5 into x 5x minus 5 5s are 25 x plus 3. Then 5x minus 25 is equal to x plus 3. Minus 25 will be shifted to the right side and plus x will be shifted to the left side. Plus x, when plus x shifted, it will be converted into minus form, minus x, and minus 25 when converted into, it is converted into plus form. Then the result is 5x minus x, 3 plus 25. 5x minus x is 4x and 3 plus 25 is 28. 4x is equal to 28. The value of x is equal to what? The value of x is equal to 28/4. 4 1s are 4, 4 7s are 28. So the value of x is 7. So we should put the value and find the proper fraction. The fraction is x minus 4/7. The fraction is what? ये हमारा fraction था. The fraction is x minus 4/7. X minus 4/x. We have to put the value of 7 in the place of x. 7 minus 4/7. 7 minus 4 is 3. 3/7. So the original fraction is 3/7. It is our answer. Okay. पूरा प्रोसेस सॉल्व करने के बाद हमारा फ्रैक्शन कितना आया 3/7, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट वी कम फॉर द क्वेश्चन नंबर 9। रमेश इज 19 ईयर यंगर देन हिज फादर। आफ्टर 5 ईयर देयर एजेस विल बी इन द रेशियो ऑफ 2:3। फाइंड इज द प्रेजेंट एज। रमेश अपने फादर से 19 ईयर यंगर मीन्स छोटा है। 5 ईयर बाद 5 ईयर लेटर देयर एज, उनकी एज का जो रेशियो होगा 2:3 हो जाएगा। देन फाइंड द प्रेजेंट एज, उनकी प्रेजेंट एज क्या होगी। ठीक, तो यहाँ पर क्या मानेंगे, यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो फादर्स एज होगी वो x होगी और रमेश उससे 19 ईयर छोटा है, सो x माइनस 19 रमेश की एज हो जाएगी। 5 ईयर लेटर दोनों में 5 ईयर ऐड कर देंगे, देन इक्वल टू 2/3 पुट करके वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे और फिर उसके बाद रमेश की वैल्यू भी वहाँ से निकाल लेंगे। ठीक, इट्स योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 9 इज योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 10। डिवाइड 48 into 2 such parts that 3 times the great part is 10 less than 4 times the smaller part। ठीक, क्वेश्चन को पहले समझेंगे। डिवाइड 48 जो नंबर है इसको 2 पार्ट में इस तरह से डिवाइड करना है दैट 3 टाइम्स द ग्रेटर पार्ट। 2 पार्ट में डिवाइड करना है, एक ग्रेटर पार्ट होगा एक स्मॉलर पार्ट होगा। तो जो ग्रेटर पार्ट होगा इज 10 लेस देन द 4 टाइम्स ऑफ स्मॉलर पार्ट। स्मॉलर पार्ट के 4 टाइम्स से 10 कम होगा ग्रेटर पार्ट। ठीक, एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी नहीं दी है। लेट्स सी द सॉल्यूशन। यहाँ पर हम क्या मानेंगे, मान लिया जो ग्रेटर पार्ट है वो x है, ग्रेटर पार्ट क्या है x है और स्मॉलर पार्ट क्या है 48 माइनस 6। जब बड़े वाले से छोटा वाला माइनस कर देंगे मीन्स जो टोटल वैल्यू होगी उसमें से बड़ा वाला माइनस कर देंगे जो पार्ट, तो स्मॉलर पार्ट मीन्स छोटा पार्ट हमको मिल जाएगा। ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग से दिस इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यही इक्वेशन है और इसी से आपको आंसर मिलेगा। ठीक, क्वेश्चन क्या कहा जाता है कि 48 को इस तरह से डिवाइड करना है दैट 3 टाइम्स द ग्रेटर पार्ट। ठीक, ग्रेटर पार्ट क्या है x का 3 टाइम्स कितना होगा 3x। ठीक, ये 3x हो गया। ग्रेटर पार्ट इज 10 लेस देन 4 टाइम्स ऑफ स्मॉलर पार्ट। पहले तो समझिए 4 टाइम्स ऑफ स्मॉलर पार्ट। स्मॉलर पार्ट क्या है, ये है इसका 4 टाइम्स। ठीक, ये स्मॉलर पार्ट इसका 4 टाइम्स। ठीक, 10 लेस देन, ये 10 कम है ना। ठीक, मीन्स ये कह सकते हैं कि ये जो पोर्शन है ये 10 इससे ज़्यादा है। ये कम हुआ तो ये क्या है ज़्यादा है, ये कम होता तो ये ज़्यादा होता। ठीक, तो 3x + 10 इज इक्वल टू 4। 48 माइनस इज विद इन द ब्रैकेट। ठीक, ये इक्वेशन समझ में आई। इसी इक्वेशन से आपको ये आंसर मिलेगा। 3x + 10 इज इक्वल टू 4 × 48 माइनस 4 × x। 4 × 48 इज इक्वल टू 192 माइनस 4 × x इज इक्वल टू 4x। 3x माइनस 4x will be transposed to the left side plus 4x. 4 is 7x. 192 plus 10 is means minus 10.
When plus 10 moves to the left side, it will be converted into minus from 192 minus 10. 4 3 7x, 7x is equal to 192 minus 10, 182. X is equal to 182 upon 7. We have to find the value of x. 7 1 is 7 and 7 when we divide 182 with the 7, the quotient is 26. So the value of x is 26. यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी 26. We have to put the value in the लेट पार्ट, जो पार्ट हमने माना था उसमें हम पुट कर देंगे. द ग्रेटर पार्ट क्या माना था x. द वैल्यू ऑफ x इज 26. सो द ग्रेटर पार्ट इज 26. स्मॉलर पार्ट इज 48 माइनस x. स्मॉलर पार्ट इज 48 माइनस 26, 22. So our answer is 22. Okay. Next question number 11. Ramjan's father is 8 times the age of Ramjan. After 2 years, father will be 2 years less than 6 times Ramjan is. Find their present age. ठीक, रमजान के फादर की एज रमजान की एज की 8 टाइम्स है. मतलब जितनी एज रमजान की थी उसका 8 टाइम करने से रमजान के फादर की एज आएगी. आफ्टर 2 ईयर, 2 ईयर बाद फादर विल बी 2 ईयर लेस देन. जो फादर की एज होगी वो 2 ईयर लेस देन 6 टाइम्स ऑफ रमजान एज. रमजान की जो भी एज होगी उसका 6 टाइम्स करने से उसमें 2 माइनस करने पे फादर की एज आएगी. फाइंड दियर प्रेजेंट एज. दोनों की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है. Let's see the solution. So let the age of Ramjan. रमजान की एज हमने कितनी मान ली x ईयर. एंड सो द फादर्स एज इज 8x. क्यों 8x क्यों हुई होती 8 टाइम्स था. 8 टाइम्स मीन्स 8 इंटू एक्स, 8x. ठीक. आफ्टर 2 ईयर्स, 2 ईयर लेटर कितना था आफ्टर 2 ईयर. अब 2 ईयर के बाद जब एज निकालेंगे मीन्स 2 ईयर ये भी बढ़ेंगे और 2 ईयर ये भी बढ़ेंगे. दोनों की इक्वेशन में 2 ईयर जोड़ देंगे, x प्लस 2 एंड 8x प्लस 2. ठीक. इसको समझिए पहले x प्लस 2 हो जाएंगे और ये हो जाएंगे 8x प्लस 2. दोनों में 2 ईयर ऐड हो गया. देन क्या कहा गया था कि आफ्टर 2 ईयर्स द एज विल बी इन द फादर विल बी 2 ईयर लेस देन 6 टाइम्स ऑफ रमजान. ठीक. रमजान की एज का 6 टाइम. तो ये रमजान की एज है. रमजान की एज का x प्लस 2 सर ये रमजान की एज है. इसका 6 टाइम्स से 2 लेस देन 2 माइनस करेंगे. ठीक. तो हमारे पास जो रमजान की एज होगी उसका 6 टाइम करने से 2 माइनस करने पे क्या है ये फादर की एज. ठीक. इक्वेशन आपकी बन गई. विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. 6 into x plus 2 in the bracket minus 2, 8x plus 2, 6 into x means 6x plus 6 to the 12 minus 2, 8x plus 2, 6x, 12 minus 2 is 10, 8x plus 2. Okay. After that 10 plus 2 transpose to the left side minus 2 and plus 6x transpose to the left side minus 6x. 8x minus 6x is equal to 2x. 10 minus 2 is equal to 8 means we can say that x is equal to 8 upon 2. 2 1 is 2 and 2 4 is 8. The value of x is 4. So यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 4. x हमने किसको माना था एज ऑफ रमजान. सो वी कैन से दैट द एज ऑफ रमजान इज 4 ईयर. रमजान की एज कितनी होगी यहाँ से 4 ईयर की होगी. एंड हिज फादर से रमजान के फादर की एज क्या थी 8x थी मीन्स 8 इंटू 4. 8 4 is 32 years. ओके. ऐसा वाला आंसर. Next, come for the question number 12 is your homework. 5 years ago, a man was 7 times as old as his son. 5 साल पहले एक व्यक्ति अपने बेटे से 7 टाइम्स बड़ा था. 5 years hence, 5 साल बाद the father will be 3 times as old as his son. जो फादर की एज होगी 5 साल बाद जो फादर की एज होगी वो अपने बेटे की 3 टाइम्स हो जाएगी. फाइंड देयर प्रेजेंट एज. उनकी प्रेजेंट एज फाइंड करेंगे. Question number 13. There are 2 types of bag which contain balls. The larger size bag contains 4 more balls than the 8 times of number of smaller balls. The total number of ball in larger bag is 100. Find the number of ball containing smaller bag. क्वेश्चन ये दिया है कि बैग में 2 तरह की बॉल थी. ठीक. 2 types of bag. 2 तरह के बैग थी. इसमें कुछ बॉल रखी थी. जो बड़ा वाला बैग था लार्जर साइज जो बैग था 4 मोर उसमें कुछ बॉल थी. मतलब बड़े वाले बैग में कुछ बॉल थी और छोटे वाले बैग में कुछ बॉल थी. तो जो बड़े वाले बैग में बॉल थी उसके बारे में इंफॉर्मेशन है कि जितनी बॉल छोटे वाले बैग में थी उस छोटे वाले बैग का 8 टाइम्स करने पर उसमें 4 ऐड करने पर जो वैल्यू आएगी उतनी ही बॉल्स हमारी लार्जर साइज बैग में थी. तो हमें और इसके बाद इंफॉर्मेशन दी है लार्जर साइज में 100 थी. तो स्मॉलर साइज का जो बैग था उसमें कितनी बॉल्स थी. क्वेश्चन देखते हैं.
पहले जो इन्फॉर्मेशन थी वो लिखते हैं। लेट द नंबर ऑफ बॉल्स कंटेन इन स्मॉलर बैग, छोटे वाले बैग में कितनी बॉल्स थी, एक्स बॉल थी, मान लिया कितनी बॉल थी, एक्स। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा गया था कि लार्जर वाले बैग में कितनी होगी 8 टाइम्स, इसका 8 टाइम्स कर देंगे और उसमें 4 ऐड कर देंगे, 4 मोर देन था, तो हमारी इक्वेशन बनेगी 4 + 8x। ये कितनी थी, ये लार्जर बैग में थी। अब लार्जर बैग में 100 बॉल्स कंटेन थी, एक हमने ये नेट करके वैल्यू निकाली 4 + 8x, और दूसरी साइड दी भी है कि बैग में बॉल कितनी थी, 100 बॉल थी। ठीक, तो 4 + 8x = 100, 4 + 8x = 100, 8x = 4, 100 - 4 means 96, 8x = 96, x = 96/8, 8 1 जा 8 and 12 8 जा 96, so the value of x is 12, means we can say that the smaller bag contains 12 balls. Okay, so answer. Next come for the question number 14. The total cost of 3 table and 2 chairs is 745 rupees. If one table cost is 40 rupees more than one chair, अगर एक टेबल की कॉस्ट 40 रुपये ज़्यादा हो, फाइंड द प्राइस ऑफ ईच चेयर। पहले क्वेश्चन समझते हैं, आपको होमवर्क में करना है। 3 टेबल और 2 चेयर, 3 टेबल और 2 चेयर, इनकी कॉस्ट 745 रुपीज़ थी। इसमें से एक टेबल की कॉस्ट 40 रुपीज़ मोर देन वन चेयर, एक चेयर से 40 रुपये ज़्यादा थी। देन द प्राइस ऑफ टेबल एंड चेयर, तो चेयर और टेबल का प्राइस हमको फाइंड करना है। कैसे करेंगे, 3 टेबल और 2 चेयर की कॉस्ट कितनी थी, 745। एक टेबल की कॉस्ट 40 रुपीज़ मोर देन वन चेयर, ठीक, एक चेयर से 40 रुपीज़ ज़्यादा थी, तो चेयर को एक्स मान लेंगे, 40 रुपीज़ ज़्यादा थी, एक्स + 40 हो जाएगा। ये एक टेबल का, फिर 3 टेबल का वैल्यू निकालेंगे, ठीक, उसमें से इसको माइनस करके 2 चेयर की वैल्यू निकाल लेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 15. The numerator of a fraction is 2 less than its denominator. If 1 is added to both its numerator and denominator, it becomes 2/3. Find the fraction. इसी तरह क्वेश्चन अभी हमने आपको कल बताया था, जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 8। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 अभी हमने एक्सप्लेन किया, सेम क्वेश्चन नंबर 15 आपको होमवर्क में करना है। न्यूमरेटर उसके डिनोमिनेटर से 2 लेस देन है, x - 2/x, इसका फ्रैक्शन हो जाएगा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 1 ऐड करना, दोनों में +1 कर देंगे और इज = 2/3 वैल्यू पुट कर देंगे, फिर वहाँ से x की वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. मिसेज अरोरा लेफ्ट 1/4 ऑफ हर प्रॉपर्टी फॉर हर सन, 2/3 ऑफ हर डॉटर एंड द रिमाइंडर फॉर हर नीस. इफ हर नीस शेयर इज 7 लाख रुपीज, देन व्हाट वाज द वर्थ ऑफ टोटल प्रॉपर्टी। एक मिसेज अरोरा है, उन्होंने 1/4 प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी का 1/4 शेयर अपनी सन को दे दिया, 2/3 शेयर अपनी डॉटर को, और जो कुछ भी बचा आफ्टर दैट वो अपनी नीस को दे दिया। फिर इफ हर नीस का शेयर दिया 7 लाख रुपीज़ है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ टोटल प्रॉपर्टी। टोटल प्रॉपर्टी कितने की थी, तो यहाँ पे हिंट दिया है, अकॉर्डिंग टू हिंट वी कैन सॉल्व क्वेश्चन इजली। तो अब यहाँ पर एक पॉइंट ये समझना कि मिसेज लेट द वर्थ ऑफ प्रॉपर्टीज एक्स, हमने प्रॉपर्टी कितना मान लिया, एक्स, उन्होंने देखिए 1/4 दे दिया, 1/4 अपने बेटे को दे दिया और 2/3 अपनी डॉटर को दे दिया। ये देने के बाद हम इसकी टोटल वैल्यू से इसको माइनस करेंगे, ठीक। टोटल वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं दी है, हमने बताया था फ्रैक्शन में टोटल वैल्यू हमेशा पुलिस 1 मानते हैं, 1 से इसको माइनस कर देंगे, ठीक। देन हमको लेफ्ट पार्ट पता चलेगा, तो अकॉर्डिंग टू दैट ये जो इक्वेशन यहाँ पे दी है उससे ये इक्वेशन बन के आएगी। ये हमारा टोटल पार्ट था, इस टोटल पार्ट को जो भी शेयर दिया गया उसको माइनस कर दिया, इस 1 में से ही 1/4 दिया गया था वो माइनस कर दिया गया, और 2/3 दिया गया था वो माइनस कर दिया गया, और हमारे पास बचा कितना 7 लाख रुपीज़, ये इस नीस का शेयर था। सो अब इसके अकॉर्डिंग हमको ये सॉल्व करना है। एलसीएम कितना आएगा 12, 12 1 जा 12, 4 3 जा 12, 3 2 3, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, 12 - 3 - 8, -3 - 8 -11, 12 - 11/12 x, 7 लाख सेम रहेगा, 12 - 11 1/12 x is equal to 7 lakh multiplied by 12, x is equal to 12 7 84 lakh, so the worth of property is 84 lakh. Okay, you can solve the question easily. Let's come for the homework. I will tell you the question homework. Question number 7 is your homework, question number 9 is your homework, question number 12 is your homework, 14 and 15 is your homework. Do your homework carefully, and so today's chapter is chapter number 7 will be in linear equation, and in next video we have to start the new chapter. Thank you so much.